Chapter 2 of class 9 is matter around us pure. So in my previous session, I have already told you the classification of matter. That is, the matter is basically of two types, that is pure substance and mixture. And under pure substance, in our previous session, we have already discussed elements, different types of elements, that is metals, non-metals and metalloids. We have already discussed their properties with examples. Now in this session, we will discuss about the compounds. So what are compounds? A compound is a substance composed of two or more elements chemically combined with one another in a fixed proportion. So here, if I will hide these headings, can you identify what are there in the container? ये container में क्या है? Can you identify? Yes, this one is element, because इसमें आप देखो ये जो element, they are not combined with any other particles, so they are able to express their own chemical properties. खुद का chemical property वो दिखा सकते हैं. Here also compounds are there. Compounds आप देख सकते हैं यार, दो तरह का particles attached है, क्या atom attached है. लेकिन इसमें जिसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एक कंपाउंड है, इसमें एक ब्लू कलर है, एक ऑरेंज कलर है. तो ये जब कंपाउंड बन जाते हैं, ये कंपाउंड बनने के बाद ये जो ब्लू कलर पार्टिकल, ये अपना केमिकल प्रॉपर्टीज अलग नहीं दिखा सकता, और ये ऑरेंज कलर पार्टिकल अपना केमिकल प्रॉपर्टीज अलग से नहीं दिखा सकता. दे कैन नॉट एक्सप्रेस देयर ओन केमिकल प्रॉपर्टीज, इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज नहीं दिखा सकते. Now whatever properties will be shown by the compound, that will be the combined property of these two particles. Okay, so this is the difference between element and compound. Okay, then homogeneous mixture and heterogeneous mixture, that we'll discuss in our successive sessions. So this is the basic difference between element and compound, and this is what is exactly the compounds. And these two particles cannot be separated physically. Okay, so as we go ahead in this session, I'll give you example how the compounds, the particles of a compounds cannot be separated by physical process. So before that, let us discuss the properties of compounds. A compound is a homogeneous substance. That means the particles of a compound are uniformly distributed. That's why it is homogeneous substance. Okay, and they are always in a fixed proportion. A compound has a definite composition. Okay, जैसे मैं आपको बताऊंगी water, H2O. So H2O में क्या है? It always composed of 2 hydrogen and 1 oxygen. ये एक डेफिनाइट कंपोजिशन है उसका, जिसमें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा और कुछ नहीं होता, और उसका एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन रहता है. ए कंपाउंड हैज डेफिनाइट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट. जैसे आप वाटर का ही ले लो या फिर किसी सॉल्यूशन का ले लो, उसका एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट रहता है. सो व्हेन दिस कंपाउंड इज फॉर्म्ड, energy is absorbed or evolved in the form of heat or light during the formation. तो जब आपका कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है, आइदर एनर्जी एब्जॉर्ब होता है या फिर एनर्जी रिलीज या इवॉल्व होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट. द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट. इसका मतलब क्या है? मैं जैसे आपको वाटर का एग्जांपल दे रही हूँ. अभी वाटर H2O का जो प्रॉपर्टी है, H2O किससे बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है. H2O का प्रॉपर्टी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी से कंप्लीटली अलग है. तो
वाटर का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या रहा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का अलग प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन का अलग प्रॉपर्टी है, लेकिन दोनों जब एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिल जाते हैं एंड दे फॉर्म ए कंपाउंड, जब वो कंपाउंड बनाते हैं तब उनका प्रॉपर्टी कुछ अलग हो जाता है। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ or properties of the compounds. The constituents of a compound cannot be separated by simple physical means. So अभी देखो जैसे H2 and O, hydrogen is a gas, oxygen is also a gas, लेकिन दोनों जब कंबाइन होते हैं that forms a compound, और उसको हम फिजिकली सेपरेट नहीं करते, उसको कर सकते हैं, उसको ना फिल्टर कर सकते हैं, ना डिस्टिलेशन कर सकते हैं, किसी भी मेथड से हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से, बट हम उसको केमिकल मेथड से जरूर सेपरेट कर सकते हैं। So here are the examples of some compounds. If we mix iron and sulfur in a watch glass, we get a mixture. This is then heated till a black mass is formed. I will show you the diagram. And this is the activity given in your textbook, NCERT textbook. तो हमने क्या लिया? आयरन एंड सल्फर लिया, उसको वॉच ग्लास में लेकर हमने मिक्सचर बनाया, देन उसको हमने हीट कर दिया ताकि एक ब्लैक मास बन गया। दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड कॉल्ड आयरन सल्फाइड। अभी हमने हीट करने के बाद वो एक कंपाउंड, पहले वो मिक्सचर था, अभी हमने जब हीट कर दिया तो दोनों एक दूसरे के साथ केमिकल रिएक्शन हो गया और दोनों एक केमिकल कंपाउंड बना दिए जो हो गया आपका आयरन सल्फाइड। अभी क्या है, हमने क्या लिया? आयरन लिया, सल्फाइड लिया। अगर हम आयरन को सेपरेट करना चाहेंगे फिजिकली तो हम क्या यूज करेंगे? ऑब्वियसली मैग्नेट यूज करेंगे, लेकिन अभी आपका कंपाउंड बन चुका है, आयरन सल्फाइड एक कंपाउंड है। अभी हम अगर उससे आयरन को सेपरेट करना चाहेंगे और उसको सेपरेट करने के लिए अगर हम मैग्नेट यूज करेंगे तो मैग्नेट से आयरन सेपरेट नहीं होगा। सो सेपरेटिंग आयरन फ्रॉम ए मिक्सचर बाय ए मैग्नेट इज ए फिजिकल प्रोसेस। सो अभी हम आयरन को इस कंपाउंड से सेपरेट नहीं कर सकते बाय फिजिकल मेथड। ओके, ठीक उसी तरह सल्फाइड, ये आयरन सल्फाइड में आपका सल्फर भी है, तो सल्फर को हम क्या कर सकते थे? उसको डिसॉल्व करके हम उसको सेपरेट कर सकते थे। अभी अगर आयरन सल्फाइड को हम डिसॉल्व करेंगे वाटर में और उसको सल्फर को हम सेपरेट करना चाहेंगे तो हम उसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। सो सेपरेशन बाय डिसोल्यूशन इज आल्सो ए फिजिकल प्रोसेस। तो यहाँ पर हम आयरन और सल्फर जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट है आयरन सल्फाइड का, उसको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ओके, सो हियर इज द एक्सप्लेनेशन। Also sulfur does not dissolve on adding carbon disulfide, thus not showing the properties of its constituents. So here is the experiment. Here you can see the sulfur powder हमने लिया है, यहाँ पर आयरन फिलिंग्स लिया है, आयरन का छोटा छोटा टुकड़ा लिया है और दोनों को हमने चाइना डिश में हीट कर दिया। सो यहाँ हीट करने से क्या होगा? आयरन के साथ सल्फर मिक्स हो जाएगा, आयरन विल गेट मेल्ट, सल्फर के साथ मिलकर ये क्या बन जाएगा आपका? यहाँ आयरन एंड सल्फर का कंपाउंड बनेगा एंड दैट कंपाउंड इज आयरन सल्फाइड। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे? आपका आयरन सल्फाइड बन गया। अभी हम सेपरेट करना चाहेंगे आयरन को, ठीक है, ये आयरन सल्फाइड है जो कि एक कंपाउंड बन चुका है, इससे हम आयरन को सेपरेट करने के लिए मैग्नेट डाला। तो क्योंकि आयरन का खुद का प्रॉपर्टी अभी नहीं है, अगर खुद का इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होता तो वो मैग्नेट से सेपरेट हो जाता, तो इसीलिए वो मैग्नेट से सेपरेट नहीं हो पाया। यू कैन सी हियर इन द डायग्राम देयर इज नो आयरन फिलिंग्स अटैच्ड टू दिस, मतलब आयरन का कोई इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं रहा। ठीक उसी तरह वही कंपाउंड हम लिए, फिर अभी सल्फर हमको सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे? उसको डिसॉल्व करेंगे। डिसॉल्व करने से क्या होगा? हम
हम चाहेंगे कि डिजोल्व करके सल्फर को सेपरेट कर देंगे, ठीक है, लेकिन इससे आपका सल्फर भी सेपरेट नहीं हो, ठीक है। सो जैसा कंपाउंड आपका था आयरन सल्फेट सल्फाइड, वही आयरन सल्फाइड वैसे ही रहेगा। Okay, so here again, once again, I am reminding you the classification of metal. So this is the, you can see the mind map. You have to remember every time what is the difference between element, compound, then mixture. Okay. So in next session, we'll discuss about the mixture. Thank you.